تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو قوت اور طاقت کے ساتھ اپنے بندوں پر غالب ہے۔ میں اس کی حمد کرتا ہوں اور اس کی فراوان نعمتوں پر اقرار و احسان مندی کے ساتھ شکر بجا لاتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایسی گواہی ہے جس کی بدولت اپنے رب کے پاس نزدیکی اور قربت کی امید کرتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ نے خفیہ و علانیہ دین حق کی طرف بلایا، توحید کی عمارت قائم کی اور شرک کے بت اور مورتیاں ڈھائیں۔ اللہ درود و سلام اور برکت نازل کرے آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر جو آپ کے اور اللہ کے دین کے انصار اور مددگار تھے، تابعین پر اور ان لوگوں پر جو اچھی طرح ان کی پیروی کریں۔ جب ان پر ان کے رب کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں اور ان پر دائمی بہت زیادہ سلامتی نازل کرے۔ اما بعد، لوگوں، میں تم کو اور خود کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ تم پر رحم کرے، تم اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ خیر تین چیزوں میں ہے: دین کے تفقہ میں، دنیا سے بے رغبتی میں، اور اپنے عیبوں پر نظر رکھنے میں۔ اور کمال چار چیزوں، دینداری، امانت داری، پاک دامنی اور سنجیدگی میں ہے۔ اللہ کے بندے، جب تو عمل کرے تو اپنے عمل کو چھوٹا نہ سمجھ۔ تجھے معلوم نہیں کہ اللہ کی رحمت اور فضل کے بعد کون سی چیز تجھے جنت لے جائے؟ آیا وہ ایک رکعت جو تو نے اللہ کے لیے پڑھی، یا صدقہ جو تو نے کسی محتاج کو دیا، یا پانی جو تو نے کسی انسان یا جانور کو پلایا، یا اپنے بھائی کی کوئی ضرورت جو تو نے پوری کی، یا رات کے اندھیرے میں کوئی دعا جو تو نے اپنے رب کے پاس ذخیرہ کیا۔ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر اللہ کی رحمت سے نا امید نہ رہ، اور خوشحالی اور تنگحالی میں اللہ کی حمد بیان کر۔ کہہ دیجئے کہ تم عمل کیے جاؤ، تمہارے عمل اللہ خود دیکھ لے گا، اور اس کا رسول اور ایمان والے بھی دیکھ لیں گے۔ اور ضرور تم کو ایسے کے پاس جانا ہے جو تمام چھپی اور کھلی چیزوں کا جاننے والا ہے، سو تم کو تمہارا سب کیا ہوا بتلا دے گا۔ مسلمانوں، انسان کی نیکی نفسوں کی پنہائی اور سینوں میں موجود دلوں سے نکلتی ہے۔ دل ایمان اور قرآن کی روشنیوں سے پاکیزہ ہوتے ہیں، اور نفس اچھی بات، نیک عمل اور خوبصورت اخلاق سے پاک ہوتے ہیں۔ دنیا میں آسائش و سکون کا سب سے بڑا سرچشمہ وہ دل ہے جس میں ایمان کی بشاشت ہو۔ ایسی آزمائش جو ہر آسائش سے بے نیاز کر دے، یہاں تک کہ بعض سلف نے کہا، مجھ پر کچھ اوقات ایسے گزرتے ہیں جن میں میں کہتا ہوں کہ اگر جنت والے اس جیسی حالت میں ہیں تو یقیناً خوشگوار زندگی میں ہیں۔ مسلمان اپنی عبادتوں میں جہاں اللہ کے لیے بندگی، توحید اور اخلاص بجا لاتے ہیں، وہیں وہ فائدے کی چیزیں حاصل کرتے ہیں اور اللہ کا فضل طلب کرتے ہیں۔ چنانچہ نماز کے سلسلے میں فرمایا گیا، پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور بکثرت اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پالو۔ حج کے سلسلے میں فرمایا، اور اپنے ساتھ سفر خرچ لے لیا کرو، سب سے بہتر تو اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اور اے عقل مند، مجھ سے ڈرتے رہا کرو، تم پر اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ اور فرمایا گیا، اور لوگوں میں حج کی منادی کر دے، لوگ تیرے پاس پاپیادہ بھی آئیں گے، اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی، اور دور دراز کی تمام راہوں سے آئیں گے، اپنے فائدے حاصل کرنے کو آ جائیں، اور ان مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یاد کریں۔ عام طاعتوں کے بارے میں فرمایا گیا، بعد دوسرے زمین میں چل پھر کر اللہ تعالیٰ کا فضل یعنی روزی بھی تلاش کریں گے، اور بعد دوسرے اللہ کی راہ میں قتال کریں گے۔ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے وہ لوگ جن کی تعریف اللہ کی کتاب میں کی گئی، خرید و فروخت و تجارت کرتے ہیں، مگر انہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے یا نماز کے قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی۔ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔
मुसलमान इन वजूहात व असबाब से, इन हिकमतों और हुक्मों से, दीन व दुनिया के रिश्ते से, दिल के काम से और ज़मीन की आबादकारी से मतलूबा कमाल की सीढ़ियाँ चढ़ने का रास्ता और उस मतलूबा पाकीज़गी के सोते वादे हो जाते हैं जो ज़िंदगी को महफूज करती और बचाती है, नफ्स की तरबियत करती है, उसकी कदर बढ़ाती है, सुकून इत्मीनान को फैलाती है और हुसूल रज़ा का बाइस होती है। अली रज़ी अल्लाह तआला अनहो दुनिया की तस्वीर कशी करते हुए और उसका हाल बयान करते हुए फरमाते हैं, दुनिया उसके लिए सदाकत का घर है जो उसके साथ सच्चाई का मामला करे, वो उसके लिए अच्छे अंजाम का घर है जो उसके बारे में अच्छी तरह समझ ले। दुनिया उसके लिए मालदारी का घर है जो उससे तोशा ले ले। वो अल्लाह के लिए महबूब बंदों की मस्जिद है, अल्लाह की वही के उतरने की जगह है, उसके फरिश्तों के नमाज पढ़ने की जगह है और उसके अलिया की जाए तिजारत है, उसमें रहमत से माला माल हुई और जन्नत की उम्मीद लगाई। कौन है जो दुनिया की मजम्मत करे जबकि उसने अपनी जुदाई का ऐलान कर दिया है और अपने ऐब को बरबला बता दिया है। उसने खुद के और अपने बाशिंदों के रुखसत होने की खबर दे दी है। उसने अपनी आजमाइश की मिसाल दी और अपने सुरूर से सुरूर का शौक़ दिलाया। लिहाजा कुछ लोगों ने नदामत के वक्त उसकी मजम्मत की और दूसरे लोगों ने उसकी तारीफ़ की और उन्हें सच कहा। दुनिया ने उन्हें इबरत का सबक याद दिलाया तो उन्होंने इबरत ली। अबू सुलेमान दारानी कहते हैं, दुनिया दुनिया वो पर्दा है जो अल्लाह से उसके दुश्मनों को दूर रखता है और उसके दोस्तों के लिए मंजिल मकसूद तक पहुँचाने वाली सवारी है। पाक है वो ज़ात जिसने एक ही चीज़ को विसाल व फिराक का दरिया बनाया। ये सब अल्लाह के बंदो दिलों के अमाल में से हैं, ताकि ना कि आदा व जवारी के अमाल में से। इसलिए तुम समझो और गौर व फिक्र करो। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की मरफू हदीस में है, जिसको इस बात की खुशी हो कि वो लोगों में सबसे ज़्यादा बेनियाज हो तो अल्लाह के हाथ में जो कुछ है उस पर वो ज़्यादा भरोसा करे बनिस्बत उस चीज़ के जो उसके अपने हाथ में है। इसे इमाम हाकिम और बैहकी ने रिवायत किया है। अल्लाह के बंदो, दुनिया से बेरगबती 6 चीज़ों के तय होती है, अपनी ज़ात, लोग, शक्ल, माल, इक़्तिदार और अल्लाह ताला के सिवा हर चीज़। इमाम अहमद से पूछा गया, क्या वो आदमी जाहिद हो सकता है जिसके पास 1000 दीनार हो? उन्होंने कहा, हाँ, बशर्ते कि जब माल बढ़ जाए तो वो ना इतराए और जब कम हो जाए तो गमगीन ना हो। उन्होंने कहा, साहबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम उम्मत में सबसे बड़े जाहिद थे, हालांकि उनके पास दौलत थी। सुफयान सौरी की एक रिवायत में है, क्या वो आदमी जाहिद होगा जिसके पास दौलत हो? उन्होंने कहा, हाँ, बशर्ते कि जब आजमाइश में मुब्तला हो तो सब्र करे और जब नवाजा जाए तो शुक्र अदा करे। उनकी एक दूसरी रिवायत में है, जाहिद को जब अल्लाह किसी नेमत से नवाजे तो उसका शुक्र अदा करे और जब किसी मुसीबत में मुब्तला हो तो उस पर सब्र करे, यही हकीकी जाहिद है। अल्लाह के बंदो, जिसको यकीन हासिल हो गया तो अपने तमाम मामलात में अल्लाह पर भरोसा करेगा, अल्लाह की तदबीर से राज़ी होगा और किसी मखलूक से अपने आप को नहीं जोड़ेगा और दुनिया उसके जायज़ असबाब और वसाइल से तलब करेगा। जो बंदा यकीन से माला माल किया गया वो अल्लाह को नाराज़ करके लोगों को राज़ी नहीं करेगा, अल्लाह की दी हुई रोज़ी पर लोगों की तारीफ़ नहीं करेगा और अल्लाह ने जो रोज़ी नहीं दी है उसकी वजह से लोगों की मजम्मत नहीं करेगा। और जिस बंदे को यकीन अता किया गया उसको मालूम है कि अल्लाह की रोज़ी ना किसी ख्वाहिशमंद की ख्वाहिश ला सकती है और ना किसी नापसंद करने वाले की नापसंदगी रोक सकती है, यकीन बतौर बेनियाजी काफ़ी है। और जिसका दिल बेनियाज होगा उसके हाथ बेनियाज होंगे और जिसका दिल मुहताज होगा उसकी मालदारी उसे कोई नफ़ा ना देगी। कनात और रोज़ी कनात और रोज़ी नहीं रोकती है जो लिखी हुई है और हिर्स व लालच और रोज़ी ला नहीं सकता जो लिखी हुई नहीं। सो जो तुम्हें मिला है वो तुम्हें मिलने वाला ही था और जो तुम्हें नहीं मिला है वो तुम्हें मिलने वाला नहीं था। तुम्हारा दिल उस चीज़ से खाली हो जिससे तुम्हारे हाथ खाली हैं। इसके बाद मुसलमान जो अल्लाह पर एतमाद करेगा अल्लाह उसके लिए काफ़ी होगा, जो अल्लाह से मांगेगा अल्लाह उसे अता करेगा और जो अल्लाह से मालदारी चाहेगा अल्लाह उसे मालदार करेगा। कनात लाजवाल ख़जाना है, रज़ामंदी ना ख़त्म होने वाला माल है। थोड़ा माल जो किफ़ायत करे वो बहुत सारे माल से बेहतर है जो गाफिल कर दे। नेकी बोसीदा नहीं होती है और ना ही गुनाह भुलाया जाता है और बदला देने वाला
अल्लाह मरने वाला नहीं। आदमी का कमाल ये है कि उसका दिल नवाजिश और महरूमी में, ताकत और कमज़ोरी में और इज़्ज़त व ज़िल्लत में एक सा हाल पर रहे। लोगों में सबसे लंबे गम का मारा हासिद है और क़नाअत पसंद सबसे खुशगवार ज़िंदगी का मालिक है। शरीफ आज़ाद इंसान दुनिया से निकाले जाने से पहले ही उससे आज़ाद हो जाता है। लंबी आरजू आखिरत को भुला देती है। जब तुम बरकत और नेक समरा के बारे में पूछो या हुकूक के ज़िया और फ़िस्क़ व नाफरमानी के फैलाव के बारे में जानना चाहो तो लोगों को देखो और क़नाअत दिल की पाकीज़गी और शुबहा में डालने वाली चीज़ को छोड़ने और मायूब करने वाली चीज़ से बचने के बारे में छानबीन करो। अल्लाह ताला का फरमान है, और जो कुछ अल्लाह ताला ने तुझे दे रखा है उसमें से आखिरत के घर की तलाश भी रख और अपने दुनियावी हिस्से को ना भूल। अल्लाह मुझे और आपको कुरान अज़ीम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से फ़ायदा पहुँचाए। मैं अपनी ये बात कह रहा हूँ और अल्लाह से अपने लिए, आपके लिए और बाकी तमाम मुसलमानों के लिए हर गुनाह और ख़ता की मग़फ़िरत तलब करता हूँ। आप अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करो, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है जिसने थोड़े से अमल को कबूल फरमाया और बहुत सी लग़ज़िशों से दरगुज़र किया। मैं उस पाक ज़ात की हम्द बयान करता हूँ और उसके वसी एहसान और कसीर खैर पर उसका शुक्र अदा करता हूँ। और मैं गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक़ नहीं, उसका कोई शरीक नहीं। दुनिया व आखिरत में उसी के लिए हम्द है और उसी की तरफ लौट कर जाना है। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे सरदार और नबी मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं, जो खुशखबरी सुनाने वाले, डराने वाले और रोशन चिराग हैं। अल्लाह ताला दुरूद व सलाम और बरकत नाजिल करे उन पर, उनके आलो असहाब पर। वो अपने नबी के बेहतरीन मुशीर और बेहतरीन मददगार थे। ताबीन पर क़यामत तक उनकी अच्छी तरह पैरवी करने वालों पर हर हमेशा रहने वाली बहुत ज़्यादा सलामती नाजिल करे। अम्मा बाद, जिस शख्स की नज़र में दुनिया बड़ी हो जाती है वो तारीफ़ को पसंद करने लगता है और मलामत को नापसंद। और कभी ऐसा भी होता है कि मज़म्मत के खौफ की वजह से वो बहुत सी हक़ बातों को छोड़ देता है और तारीफ़ की चाहत में कुछ बातिल कामों को करने लगता है। चुनांचे वो दूसरों के लिए कमाई करने वाला, बैठे रहने वाले के लिए दौड़ धूप करने वाला और मालदार के लिए माल जमा करने वाला बन जाता है। उसका फ़ख्र उसके घटिया मिजाज, शिद्दत हिर्स और उसके नफ्स के लालच की वजह से है। ना वो किसी चीज़ से फ़ायदा उठाते हैं और ना ही मशक्क़त से राहत पाता है। कितनी ऐसे मालदार हैं जिनके पास दौलत की फरावानी होती है मगर तुम उन्हें बिल्कुल तही दामन समझते हो। उसकी शख्सियत छोटी होती है, चेहरा बसोरे हुए रहता है, पज़मुर्दगी उस पर छाई रहती है। जो कुछ उसके पास है उसका हरीस होता है और जो चीज़ उसकी दस्तरस से बाहर है उसका लालच का रखता है। अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह आप पर रहम फरमाए और जान लो कि एक अज़ीम और बाबरकत महीना तुम पर साया फ़गन होने वाला है। अल्लाह का फरमान है, माह रमज़ान वो है जिसमें कुरान उतारा गया, जो लोगों को हिदायत करने वाला है और जिसमें हिदायत की और हक़ व बातिल की तमीज़ की निशानियाँ हैं। ये तक़वा का महीना है और तक़वा वो बेहतरीन ज़ाद राह है जो कामिल लज़्ज़तों और अज़ीम तरीन नेमतों तक पहुँचाने वाला है। और जो शख्स इस ज़ाद राह को ना ले वो मुत्तक़ियों के घर यानी जन्नत तक कैसे पहुँच सकता है। रमज़ान का मुबारक महीना वो है जिसमें इंसान अपने नफ्स को उसकी ख्वाहिशों और रग़बतों से आज़ाद करता है। और अहले इल्म ने एक लतीफ़ नुक्ता बयान किया है कि अल्लाह ताला ने रोज़े को क़त्ल, ज़िहार और कसम की कफ़ारे में ग़ुलाम आज़ाद करने के बराबर करार दिया है। बस जो शख्स ग़ुलाम आज़ाद करने की कुदरत ना रखे वो रोज़े की तरफ मुंतकिल हो जाता है। चुनांचे रोज़ा नफ्स को उसकी ख्वाहिशात से आज़ाद करने और अपनी शहवतों और मैलानात पर काबू पाने का ज़रिया है। और ख़बरदार रहो ऐ अल्लाह के बंदे कि कहीं तुम इस हदीस की वईद में दाखिल ना हो जाओ। उस शख्स, अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिसने रमज़ान को पाया और उसकी बख्शिश ना हुई और रमज़ान गुजर गया। जो शख्स झूठी बात और उस पर अमल करना और नादानी नहीं छोड़ता तो अल्लाह को उसके भूखा
प्यासा रहने की कोई ज़रूरत नहीं। और कितने रोज़ेदार ऐसे हैं जिन्हें उनके रोज़े से सिवाय भूख और प्यास के कुछ हासिल नहीं होता, और कितनी क़याम करने वाले ऐसे हैं जिन्हें उनके क़याम से सिवाय जागने और थकने के सिवा कुछ नहीं मिलता। ऐ अल्लाह हमें माह रमज़ान तक पहुँचा और उसमें हमें खूबसूरत अंदाज से रोज़ा रखने, नमाज तरावी व क़याम करने, कुरान की तिलावत करने और दीगर नेकियां करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, और अपने फ़ضल व करम से हमें लैलतुल क़द्र के क़याम की सआदत नसीब फ़रमा, और हमारे लिए बेहतरीन सवाब और अज़ीम अजर लिख दे। ये बातें हुई और दुरूद व सलाम भेजो, हदिया में मिली रहमत और अता की गई नेमत अपने नबी और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तुम्हारे रब ने अपनी मुहकम किताब में तुमको यही हुक्म दिया और वो अपने कौल में सच्चा है। अल्लाह ने फरमाया, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते इस नबी पर दुरूद भेजते हैं, ईमान वालों तुम भी उन पर दुरूद भेजो और खूब सलाम भी पढ़ते रहा करो। ऐ अल्लाह अपने बंदे और रसूल हमारे नबी मोहम्मद महबूब मुस्तफ़ा और नबी मुस्तफ़ा पर दुरूद व सलाम और बरकत नाजिल फरमा, और उनके पाकीज़ा और पाकबाज अहले बैत पर और उनकी अज़वाज मुतहरात पर जो मोमिनों की माएँ हैं। ऐ अल्लाह खुलफ़ा राशिदीन अबू बकर, उमर, उस्मान और अली से राज़ी हो जा, और तमाम सहाबा से और उनके बाद आने वाले ताबिईन से और उनसे भी जो क़यामत तक नेकी के साथ उनके नक्श कदम पर चलें, और हमें भी अपनी माफ़ी करम और एहसान से उनके साथ शामिल फरमा। ऐ अकरमुल अकरमीन, ऐ अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को गलबा अता फरमा, शिरक और मुशरिकीन को दलील कर, ज़ालिम मुल्हिदों और दीन व मिल्लत के तमाम दुश्मनों को रुसवा कर। ऐ अल्लाह हमें हमारे मुल्क में अमन अता फरमा, हमारे रहनुमाओं और हुक्मरानों की इस्लाह फरमा, और हमारे मामलात ऐसे लोगों के हाथ में दे जो तुझसे डरते हों और परहेज़गार हों, तेरी रज़ा के पैरोकार हों। ऐ रब्बुल आलमीन, ऐ अल्लाह हमारे सरबरा और हाकिम खादिम हरमैन शरीफैन को अपनी तौफ़ीक़ अता फरमा, उन्हें अपनी फरमा बरदारी के ज़रिए इज़्ज़त व ग़लबा अता फरमा, उनके ज़रिए अपने कलिमे को बुलंद कर और उन्हें इस्लाम और मुसलमानों की मदद का ज़रिया बना। उन्हें और उनके वली अहद को, उनके भाइयों को और मुआविनीन को काम करने की तौफ़ीक़ दे जो तुझे पसंद हो और जिनसे तू राज़ी हो। उन्हें नेकी और तक़वा की राह पर गामज़न रख। ऐ अल्लाह मुसलमानों के हुक्मरानों को अपनी किताब और अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक़ दे। उन्हें अपने मोमिन बंदों के लिए रहमत बना और उनके दिलों को हक़ और हिदायत पर इकट्ठा कर दे। ऐ अल्लाह दुनिया भर के मुसलमानों के हालात दुरुस्त फरमा, उनके खून की हिफाजत फरमा और उनको हक़ व हिदायत और सुन्नत पर जमा कर दे। ऐ अल्लाह उम्मत इस्लाम के लिए एक सही और मजबूत रहनुमाई वाला दौर पैदा फरमा, जिसमें तेरे फरमाबरदार इज़्ज़त पाएँ और गुनहगारों को हिदायत मिले, नेकी का हुक्म दिया जाए और बुराई से रोका जाए। बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह मुझ फ़िलिस्तीन में हमारे भाइयों की मदद फरमा। ऐ अल्लाह तू उनका कारसाज मुईन और मददगार बन। ऐ अल्लाह तू उनका मामला अपने ज़िम्मा ले ले, उनके शिराज़ा को बांध दे और अपने और उनके दुश्मनों पर उनकी मदद फरमा। ऐ अल्लाह वो कमज़ोर है उन्हें ताकतवर बना, वो भूखे हैं उन्हें खाना खिला, वो नंगे बदन है उन्हें कपड़े इनायत फरमा, वो नंगे पैर हैं उन्हें सवारी अता फरमा। ऐ अल्लाह उनकी रहमतों को मजबूत कर, उनकी ज़बरदस्त मदद फरमा और मस्जिद अक़सा की हिफाजत फरमा। ऐ क़ुव्वत व ग़लबा वाली, ऐ अल्लाह हम हर मुसीबत से तेरी आफ़ियत चाहते हैं और हर आफ़ियत में तेरा शुक्र अदा करते हैं। ऐ अल्लाह हम पर ऐ अल्लाह हम हर बुरी चीज़ से तेरे ज़रिए बचाव चाहते हैं और उसके शर से तेरी पनाह मांगते हैं। ऐ अल्लाह बरस यानी सफ़ेद दाग, जुनून, जुज़ाम और तमाम बुरी बीमारियों से हम तेरी पनाह चाहते हैं। अल्लाह हम तुझसे दुआ करते हैं कि जो कुछ तूने मुक़द्दर किया उसमें नरमी कर और जो फ़ैसले किए हैं उनमें हमारी मदद फरमा, और हम कदम फिसलने पर तेरी मग़फ़िरत चाहते हैं। ऐ फरियाद सुनने वाले, हर मुश्किल दूर करने वाले, हम पर सतरपोशी, आफ़ियत और तक़वा का लिबास डाल दे और जन्नतुल फ़िरदौस को हमारा ठिकाना बना। ऐ अल्लाह हमारे लिए असबाब आसान कर दे, दरवाजे बंद ना कर और हमें कबूल होने वाली दुआ की तौफ़ीक़ दे। ऐ अल्लाह तू ही अल्लाह है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू बेनियाज़ है और हम मोहताज हैं। ऐ अल्लाह हम पर बारिश नाज़िल फरमा, हम पर बारिश नाज़िल फरमा, हमें ना उम्मीद ना कर। ऐ अल्लाह तू हम पर बारिश नाज़िल फरमा, हम तुझसे मग़फ़िरत चाहते हैं, तू बहुत बख्शने वाला है। हमारे ऊपर मूसलाधार बारिश नाज़िल फरमा और हमारे लिए उसे अपनी इताअत की ताकत और मुक़र्रर वक्त के लिए सहारा बना। ऐ अल्लाह ऐसी बारिश नाज़िल फरमा जो फ़ायदा देने वाली हो, सैराब करने वाली हो, भरपूर मुसलसल और ढाँप लेने वाली बारिश हो, जिससे तू ज़मीन को ज़िंदा कर दे और बंदों को सैराब कर दे और जो शहर और देहात सब के लिए काफ़ी हो। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों के बायस अपना फ़ضल हमसे ना रोका, हमने अल्लाह ही पर भरोसा किया। ऐ हमारे रब,
ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنا۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھلائی عطا فرما، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ کے بندو، اللہ انصاف اور انسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، برائی اور زیادتی سے روکتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو، اللہ کو یاد رکھو، تمہیں یاد رکھے گا، اور اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرو، وہ تمہیں اور دے گا۔ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو جانتا ہے۔